presentation. Dear students, we shall be discussing the magnetic properties of solids. Magnetic properties of solid पर चर्चा करेंगे. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि every substance, every material, every solid is associated with some sort of magnetic properties. किसी न किसी प्रकार की magnetic properties हर substance में associated होता है. अब यह है कि magnetic properties का origin क्या है? तो सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एवरी सब्सटेंस कंटेन्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एंड इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ड्यू टू टू रीजंस होता है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल मोशन होता है. ऑर्बिटल मोशन along the nucleus. अगर ये न्यूक्लियस का डायरेक्शन है तो ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल मोशन होता है. ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. सो दिस इज वन थिंग. और दूसरी बात हम लोग जानते हैं क्या है कि एक पार्टिकुलर एक्सिस के एलोंग इसकी स्पिन भी होती है. इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है स्पिन की वजह से. सो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स. यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स. पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स, यू नो. और चार्ज पार्टिकल्स इफ इन मोशन और दे बिहेव लाइक मैग्नेट्स. Electrons are behaving like current loop of magnet or magnetic moment, magnets, and that creates the magnetic moments. But you know electrons are very small, and that's these properties or the magnetism arising from the electrons are microscopic in nature. ठीक है. अब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से कैसा रिस्पॉन्ड करता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरीज में बांटते हैं. 5 कैटेगरीज में बांटते हैं तो सब्सटेंसेस को. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स of the substance, depending upon the response of the substance. कैसा रिस्पॉन्स करता है? रिस्पॉन्स ऑफ द सब्सटेंस in the magnetic field. These are classified ऐसे भाई. तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, second category is paramagnetic substances. Ferromagnetic substances, then antiferromagnetic substances, and the fifth one are ferrimagnetic substances. And the properties possessed by these substances. For example, the properties as possessed by the diamagnetic substances is known as diamagnetism. The properties as exhibited by paramagnetic substances is called paramagnetism. The properties exhibited by ferromagnetic substances is ferromagnetism, and so on. Now let us discuss what diamagnetic substances are. How can we define the diamagnetic substances? So let us discuss one by one first. So what are diamagnetic substances? The substances, as we have already discussed, that depending upon
depending upon their response to the magnetic field. So how are the response of these substances, diamagnetic substances? The substances which are weakly repelled in the magnetic field or by the magnetic field. Repelled in the magnetic field. Or by the magnetic field are called magnetic field. Are called diamagnetic substances. Diamagnetic substances. And the properties shown ऐसा substances है diamagnetism. Example are H2O, example are NaCl, example are C6H6, etc. If you go into the detail of the electronic structure of these substances, H2O or NaCl or C6H6, you will find हमें मिलेगा कि all the electrons are paired. इस मॉलिक्यूल में बेंजीन मॉलिक्यूल का तुम अगर स्ट्रक्चर जाकर डिस्कस करोगे और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो तुम्हें मिलेगा कि all electrons are paired. तो डायमैग्नेटिज्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसमें अगर वो substance exists in the form of molecules as in the case of water or in the form of ions as in the case of sodium chloride, all the electrons will be paired. सारे electrons अगर paired हो तो the pairing of electron cancels the effect of each other and the net effect is the no magnetic property or such substances are weakly repelled in the magnetic field and are called diamagnetic substances. Now the next one is paramagnetic substances. Paramagnetic substances. Paramagnetic substance. Second one is the paramagnetic substances. Paramagnetic substances. The substances which are weakly attracted by the magnetic field. Attracted by the magnetic field. Are called paramagnetic substances. Paramagnetic substances. Examples are, and you have seen in class 11 में देखा होगा O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, तब उन्होंने देखा था दो इलेक्ट्रॉन पेयर थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे. दैट्स व्हाई दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. फिर हम लोग देख सकते हैं Cr3+, Fe3+, Cu2+, etc. गैडोनियम O2, Cr3+, Fe3+, Cu2+, etc. So these are some of the examples of paramagnetic substances. अब केमिस्ट्री के नज़रिए से अगर देखा जाए तो O2 में जैसा कि हमने कहा कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे हैं which are singly occupied, मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्रोमियम 3+ का कन्फिग्रेशन लिख के देखो, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयन में हो या एटम में हो या मॉलिक्यूल में हो, एटॉमिक ऑर्बिटल या आयन के ऑर्बिटल में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वन और मोर इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो इस तरह के सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. और ऐसे सब्सटेंसेस में इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड,
paramagnetism is lost, or the magnetic properties are lost. Now the third one is ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Third one is ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. You can say the extreme case or the higher degree of paramagnetism is the ferromagnetic. अट्रैक्शन होगा, स्ट्रांगली होगा अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में फील, इफ इट इज ब्राउट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अगर अट्रैक्टेड होगा। और ऐसे सब्सटेंसेस की खासियत ये होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया जाए, these substances will remain permanently magnetic, permanently magnetized हो जाएगा। जैसे the substances which are strongly attracted by the magnet, strongly attracted by the magnetic field, and remain magnetized, remain permanently magnetized or remain magnetized even in the absence of magnetized, even in the absence of magnetic field, even in the absence of magnetic field, even in the absence of magnetic field. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा भी दिया जाए तो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोनियम, जीडी, Cr2, ये सब कुछ एग्जाम्पल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोनियम, जीडी, Cr2 एक्सेट्रा। अब क्या होता है इसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात है। इसमें सॉलिड स्टेट में, इन द सॉलिड स्टेट में द मेटल आयंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। इसके जो मेटल के जो आयंस होते हैं, हम जानते हैं कि मेटल्स में जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटल्स का जो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में बताया गया है कि मेटल्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और कर्नेल्स are arranged in the definite geometrical manner, and the valence electrons are mobilized and form a C-like structure, electron C model उसको बोलते थे, याद आ रहा। तो ये जो मेटल का आयंस है, सॉलिड स्टेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मेटल आयंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, छोटे छोटे रीजन में ग्रुपिंग हो जाती है। दीज आर कॉल्ड डोमेन्स, एंड डोमेन्स बिहेव एज टाइनी मैग्नेट, छोटा छोटा मैग्नेट की तरह डोमेन्स। स्मॉल रीजन्स में जो आयंस का अरेंजमेंट होता है, ग्रुपिंग होती है, उस छोटे से रीजन में जो आयंस की ग्रुपिंग होती है उसको डोमेन्स कहते हैं, और डोमेन्स जो है टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। Now what happens, unmagnetized substance में these domains are randomly oriented, कोई किधर है, कोई किधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का इधर है, किसी का उधर है, एंड द मैग्नेटिज्म गेट्स कैंसिल, मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट्स कैंसिल, वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए गेट्स कैंसिल। बट इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस, दीज डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। सभी डोमेन जो है मैग्नेट की डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डोमेन को अगर रिप्रेजेंट करता हो तो ये एक डोमेन हो गया, दूसरा डोमेन हो गया, तीसरा डोमेन हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, एंड सो इस तरह से सारे मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
magnetic field and it behaves, and that's why these are strongly attracted. सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और all tiny magnets have been grouped together in the same direction और पावरफुल मैग्नेट तैयार हो गया, और इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है तो ये डोमेन्स रिमेन ओरिएंटेड एज बिफोर, पहले की तरह ये ओरिएंटेड रह जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि इसका मैग्नेटिज्म कुछ नहीं होता। ये हुआ फेरोमैग्नेटिक। चौथा वैरायटी है, चौथा कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस है, फोर्थ कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इनको डिफाइन हम करेंगे वही डोमेन के सेंस में, जैसे डोमेन्स के डोमेन के सेंस में, तो इसको डिफाइन हम लोग करते हैं द सब्सटेंसेस इन विच, द सब्सटेंसेस इन विच, सब्सटेंसेस इन विच डोमेन्स, अभी जो चर्चा हुई तो डोमेन्स किसको कहते हैं, डोमेन्स, डोमेन्स आर एलाइन्ड, aligned in parallel and anti-parallel, parallel and anti-parallel direction in equal, anti-parallel direction in equal numbers, directions in equal numbers, in equal numbers, giving net zero magnetic moment, giving net zero magnetic moment, zero magnetic moment, magnetic moments, moments are called anti-ferromagnetic substances, anti-ferromagnetic substances, anti-ferromagnetic substances। एग्जाम्पल है इसका NNO, V2O3 एक्सेट्रा। इसका हम लोग डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें, फिर से देखो। एंटी फेरो, फेरो का एंटी ऑपोजिट उल्टा, तो ये वो सब्सटेंसेस है जिसमें डोमेन्स अलाइन हो गए लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाएं कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। एक डोमेन का अलाइनमेंट अगर इधर है पैरेलल डायरेक्शन में तो दूसरे का एंटी पैरेलल में कैंसिल कर देगा एक दूसरे, एक इधर है एक इधर, इक्वल नंबर, एक इधर है एक इधर होगा, एक इधर है इस डायरेक्शन में पैरेलल, एक एंटी पैरेलल हो जाएगा, एक पैरेलल है एक एंटी पैरेलल हो जाएगा इक्वल नंबर में। तो इस डायरेक्शन में पैरेलल एंटी पैरेलल पैरेलल एंटी पैरेलल पैरेलल एंटी पैरेलल पैरेलल एंटी पैरेलल, तो डोमेन्स आर अलाइन्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इसी को कहा जाता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। और इक्वल नंबर पे जब होता है तो वो कैंसिल कर देता है, इसलिए जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और फिर जब ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हीट कर दिया जाता है, हीटिंग एंड दीज आर हीटेड, these domains are randomly oriented and behaves like paramagnetic substances, paramagnetic की तरह behave करने लगता है जब हीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर V2O3 को 150 तक अगर कर दिया जाए तो दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये हुआ चौथा टाइप का सब्सटेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पॉन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। पांचवा प्रकार का सब्सटेंस होगा, पांचवा फिफ्थ टाइप का होगा, एंड दैट विल बी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, the substances in which the domains are चर्चा कर चुके हैं। डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स आर aligned in
parallel and anti-parallel directions, parallel and anti-parallel directions, parallel directions in unequal directions in unequal numbers, giving rise to net magnetic moment, giving rise to net magnetic moments are called heavy magnetic substances. Heavy magnetic substances. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा, Fe3O4, ये मैग्नेटाइट है, सबको इसको बोलते हैं। और क्या होगा? MF3O4, इसको फेराइट्स कहते हैं, जहाँ M रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम, M रिप्रेजेंट्स जिंक, M रिप्रेजेंट्स कॉपर एटसेट्रा, इसको कहते हैं फेराइट्स। डाइवैलेंट नेचुरली ये आयरन होगा ट्राइवैलेंट। तो इस तरह से फेराइट्स इसको कहते हैं मैग्नेट। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हेवी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसको अगर डायग्रामेटिकली समझा जाए तो ऐसे देखना पड़ेगा कि जैसे पैरेलल में अगर 2 डोमेन है, एंटी पैरेलल में 1 है, पैरेलल में 2 डोमेन है, एंटी पैरेलल में 1 है, 2 है 1 है, 2 है 1 है। तो देख सकते हो साहब कि पैरेलल में जितना है एंटी पैरेलल में उतना नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल नहीं हो पाता है, और ऐसे सब्सटेंसेस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट बैलेंस करता है, और उस तरह के सब्सटेंसेस को फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब क्या है कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी अगर हीट किए जाएं तो फिर इसका अलाइनमेंट रैंडम हो जाता है। डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, एंड यू हैव टू फिनिश। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक पे जितना एक्सरसाइज है पूरा एक्सरसाइज उसको बना के सबमिट करना। थैंक यू।